Dear students, in our today's class, we will discuss about some numerical problems on thermodynamic processes for steam. As we have discussed different type of property diagrams, as well as we have discussed about the steam table. But this concept and how to use the diagrams or charts as well as steam table, it it becomes more clear when you solve some problems. Okay, so we will take some problem. It is very important. Okay, so we are taking problems one by one. So just I am copying one problem and pasting in your chat box. So see that. So actually the problem is it is based on the constant pressure. The problem is based on constant pressure. So in this problem, you will see 3 kg of steam at 10 bar and 250 degrees centigrade. It undergoes a constant pressure process. The resulting steam is wet, having dryness fraction 0.6. And here we have to calculate the work done, change in enthalpy as well as heat transfer, assuming non-flow process. So we will solve this problem here. So actually in this problem you will see, we will go for the solution. Actually, this is a constant pressure process. So if we draw it on the HS chart, which is most commonly used, so we can draw roughly HS diagram here, enthalpy entropy chart. So here we can use this term enthalpy and it is entropy. Okay. So this curve actually just roughly we can mark this type curve obtained. And this is enthalpy entropy chart, and this we are saying this is the dry vapor line. So 3 kg of steam at 10 bar and 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम ये देखेंगे कि जो 10 बार है और ये टेम्परेचर है, स्टीम की कंडीशन क्या है. ओके, सो फ्रॉम स्टीम टेबल एट 10 बार, इसमें हमारा प्रेशर 10 बार रहेगा एंड टेम्परेचर इज that is T equal to 250 degree centigrade. We will read the different properties. So देखिए I am going to see the what is the steam table. तो अगर steam table हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, आपको टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है. सो हियर वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम. यहाँ पर हम सुपर हीटेड स्टीम की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर रीड करेंगे या स्टडी करेंगे. ओके, so here the given is pressure given here uh, 10 bar. Do you also have the steam table? आप सबके पास steam table है क्या? ये सब फोन में जो सब आपने ये तो पीडीएफ वो में लिखा है, है। ये सब वही है। हाँ, तो देखिए आपको इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें स्टीम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपको प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं. एंड आई कैन यूज अनदर टेबल ऑल्सो. सो वन सेकेंड. मेरे पास एक ये दूसरा भी स्टीम टेबल है, इसको भी ले सकते हैं.
Actually, we have to see it for the superheated steam, है ना? superheated steam हम देखना है, इसलिए प्रॉपर्टी हम रीड करेंगे. For the property superheated steam, like they are based on the pressure as well as temperature is also given. That means the pressure. I think it is not showing the pressure. Just 1 second. देखिए आपको ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. इस पे देखिए अगर आप देखेंगे. Yes, sir. हाँ, इस पे एक्चुअली क्या है, देखिए प्रेशर भी आपको दिख रहा है, तो इसमें प्रेशर हमारा कितना दिया है, 10 बार दिया है ना? प्रेशर गिवन इज 10 बार. तो देखिए आपको ये दिख रहा है, ये 10 बार प्रेशर लिखा हुआ है. Yes, sir. दिख रहा है आपको 10 बार प्रेशर, यहाँ पे कर्सर है 10 बार. तो इस 10 बार प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपको एक टेम्परेचर दिख रहा होगा. कितना टेम्परेचर है ये? 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9.79. है ना? 9 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एक्चुअली हमारे पास जो कंडीशन दिया है वो 3 बार दिया है, सॉरी 10 बार दिया है, और टेम्परेचर दिया है 250. बट जो ड्राई स्टीम के लिए टेम्परेचर होता है, दैट इज द सैचुरेटेड टेम्परेचर, कितना होता है? 179.9 होता है. ओके, इसका मतलब जो हमारा गिवन टेम्परेचर है ग्रेटर देन दिस टेम्परेचर, सो स्टीम इज द दैट वी कैन से स्टीम इज द सुपर हीटेड स्टीम. हमारी स्टीम कैसी होगी? सुपर हीटेड स्टीम होगी. Superheated. हाँ, ओके. So here we have seen from the steam table at 10 bar. 10 bar के लिए if we write here the T saturation, T saturation और TG दिया हुआ है और T saturation दिया हुआ है. That temperature is equal to 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है. ओके, Yes, sir. मीन्स ये होता है टेम्परेचर ड्राई वेपर के लिए. बट हमारा जो गिवन टेम्परेचर स्टीम का वो कितना दिया है? 250 दिया हुआ है. 250. इसका मतलब या इसका मतलब हमारी स्टीम कैसी हुई? और स्टीम इज द Superheated steam. सुपर हीटेड स्टीम. ओके, सुपर हीटेड स्टीम में इसका मतलब 0.1 हमारा कहीं यहाँ पर कहीं पर आएगा. 0.1 विल बी हियर. 0.1 है. अब इस पर हमारा 0.1 पर प्रेशर कितना है हमारा? जिस सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर. Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही, टेबल ही दिख रही है. हाँ, अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? Yes, sir. अब विजिबल है. Yes, sir. Yes. इसमें आपका ये प्रेशर दिया है जिस P1 इक्वल टू ये 10 बार रहेगा. इसको हमें मार्क कर लेंगे. एक्चुअली 10 बार आपको दिया हुआ है प्रेशर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सुपर वाला टेम्परेचर T1 लिखेंगे, ये आपका 250 है. ओके, ये पॉइंट बन हो जाएगा. Yes, sir. तो 1 पॉइंट में मार्क कर लिया, ये 1 पॉइंट मार्क कर लिया एच स्टार्ट पे. हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो आपने देखा होगा इस प्रकार से हमारी कोई लाइन आती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन मूव्स लाइक दिस, ऐसे हमारी कोई लाइन जाती है. ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे लिए कोई पॉइंट 2 मिलेगा. यू गेट सम पॉइंट 2 हियर, एंड दिस प्रोसेस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ये कोई पॉइंट 2 मिलेगा. अब इसमें क्या दिया है? इसको जब देखिए, the 3 kg of steam at 10 bar and 250 degree centigrade undergoes a constant pressure process. Resulting steam is bed having dryness fraction 0.6.
जब इसका हम एक्सपांसन करते हैं स्टीम का फ्रॉम 10 बार एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें जो बाद में स्टीम मिलती है 0.2 पर, वो स्टीम कैसी होती है? वेट स्टीम मिलती है। उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन कितना होता है? 0.6 होता है। मीन्स यहाँ पर कोई लाइन जाएगी जो डायरेक्ट फ्रैक्शन लाइन होगी, दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट and this line indicates x equal to 0.6. ओके, तो आप इसको देख रहे हैं, जो 1 to 2 है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 1 to 2 इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रॉब्लम आपको समझ समझ के करना है, अदरवाइज थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग हम सारी प्रॉपर्टीज को हम इसमें रीड कर लेंगे, लिख लेंगे हम। करस्पॉन्ड टू 10 बार यू विल रीड द डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब आप लिखेंगे H1 इक्वल टू H सुपर 1, इसकी वैल्यू क्या रही आपको वो लिखना है। फिर आपको लिखना है एंड V1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V सुपर 1, इसकी वैल्यू आपको नोट करना है। ओके, तो आपको ये वैल्यू आप उसमें रीड कर पा रहे हैं क्या स्टीम टेबल से? बिकॉज इट रिक्वायर्स कि आपके पास कॉपी होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। देखिए आपको ये 10 बार दिख रहा है, 10 बार के करस्पॉन्डिंग अगर हम इस लाइन को फॉलो करते हैं तो इसमें 10 बार और टेम्परेचर है 250। आपको देख पा रहे हैं टेम्परेचर 250 है, दिख रहा है आपको? टेम्परेचर 250, तो 10 बार के करस्पॉन्डिंग और 250 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू देखना है। ओके, तो इसमें आपको जो डिफरेंट वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी गई है, और आपको जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए वैल्यू दी है। ओके, ये वैल्यू आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए वैल्यू दी गई है। इस प्रकार से वैल्यू आपकी आर ऑल्सो गिवन फॉर द, आई थिंक दिस इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम हियर, स्क्रीन शेयरिंग की प्रॉब्लम जा रही है। Yes, sir. Yeah. So just okay, I am directly going to write the values here, है ना? तो इसमें क्या होगा, इस Yes, sir. पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को लिख लेते हैं। 10 बार प्रेशर है और टेम्परेचर 250 है, तो H1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है, ये हमें सारी वैल्यू मिल जाती है। बिकॉज द टेबल इज नॉट शोइंग डायरेक्टली द ऑल द वैल्यूज एट द सेम पॉइंट, है ना? वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना? अब बताऊँगा मैं। तो H1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू क्या है, ये हम इसमें सारी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना? We also write the Yes, value of at this, because इसमें क्या होगा, हमारी स्टीम सुपरहीट स्टीम रहेगी हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा, H1 इक्वल टू H सुपर 1 हो जाएगा और हमारा V1 इक्वल टू V सुपर 1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ये नोट करते हैं, वैल्यू क्या आएंगे, बिकॉज आई एम हैविंग सम वैल्यूज हियर, मैंने वैल्यू वाले नोट करके रखे, दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो एंड फॉर दिस प्रॉब्लम आई ऑल हैव द सॉल्यूशन 3 kg ऑफ स्टीम। या तो देखिए इसमें 10 बार और 50 पर आप देख सकते हैं V1 की वैल्यू आ रही है 0.2328 क्यूबिक मीटर, ये वैल्यू मिल जाएगा V1 की, है ना? तो एक वैल्यू आपको मिल yes, जाएगी। sir. ओके, सो दैट यू कैन नोट डाउन देयर, V1 इक्वल टू 0.2328 23228. क्यूबिक मीटर। ओके, बिकॉज लेकिन आपको इस से करना आना चाहिए, है ना, क्यूबिक मीटर पर केजी। आपको इसमें निकालना है कि आपको वर्क डन निकालना है एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताइए? सो दिस इज W122, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, लेट दिस प्रेशर P1 मान लिया, P1. और ये आपको हो जाएगा V2 माइनस V1, P1 V2 माइनस V1। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको ये प्रेशर तो नोन है, प्रेशर इज गिवन, कितना दिया, 10 बार प्रेशर दिया हुआ आपके लिए। यू नीड V1 एंड V2, तो V1 आपको नोन है, V1 मतलब कब मिलेगा, इस पॉइंट 1 पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल रहा है V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2328 क्यूबिक मीटर। क्लियर?
Yes, sir. V1 की वैल्यू होगी, आपको क्या V2 निकालना है, यू हैव टू फाइंड V2। तो देखिए V2 मीन्स, अब देखिए V2 मीन्स इस पॉइंट 2 पर, अब देखिए पॉइंट 2 पर जा रहे हैं, 2 पर कितना प्रेशर है, P2 कितना है, P2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 10 बार, बिकॉज 10 प्रेशर कांस्टेंट है, Yes, sir. तो आपका ये क्या रहेगा, ये भी 10 बार रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इस फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल एट 10 बार, अब इस 10 बार पे आप वैल्यू नोट करेंगे, वैल्यू आप 10 बार के करस्पॉन्डिंग, 10 बार के करस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, आपको एक तो VG चाहिए, ड्राई स्टीम के लिए VG मीन्स VG2 एट पॉइंट 2 पर, और एक आपको चाहिए क्या, VF2 वाटर के लिए, ठीक है। तो फिर से देखिए मैं वहीं पहुंचता हूँ स्टीम टेबल के लिए, आपको चाहिए ड्राई स्टीम के लिए, तो ड्राई स्टीम में हम जाएंगे, प्रेशर 10 बार करस्पॉन्डिंग, ये देखिए इसे प्रेशर दिया है, बट वी विल गो फॉर द 10 बार प्रेशर। देखिए मिला आपको 10 बार प्रेशर, Sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो दी 10 बार के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू लेना है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो देखिए आपको इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आपको ये दिख रही है, VF एंड VG आपको दिखाई दे रहा होगा, VF एंड VG दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो VG कितना है, VG का वैल्यू है 0.1943, और Yes, sir. VF का वैल्यू है 0.001127, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम, तो वी विल टेक ओनली 0.1943, ठीक है। Yes, sir. हाँ तो देखिए है ना, एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से कीजिए। तो VG2 हम कितना बोला था, 0.1943 4-3. 4-3. क्यूबिक मीटर पर केजी। आपको मालूम होगा कि जैसे हमारे पास क्या है, वेट स्टीम 2 पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, 2 पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास ये वेट स्टीम है, एट पॉइंट 2 वी आर गेटिंग द वेट स्टीम, ओके। सो वेट स्टीम के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर वेट स्टीम अगर हम इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखते V लिखते हैं या V2 लिखते हैं, इसके फॉर्मूला आपको मालूम है, 1 माइनस X2 VF2 एंड प्लस X2 VG2, ओनली हमारा ये 2 क्या है, सफिक्स है और कुछ भी नहीं है, ये आपको अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस X2 VF2 प्लस X2 VG2। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल वैल्यू के लिए, वी कैन निगलेक्ट इट बिकॉज द स्पेस वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू X2 इंटू VG2, X2 इंटू, ऐप में सर F2 लिखा है सर। हाँ VG2 एग्जैक्टली, X2 इंटू VG2 आ जाएगा, है ना। इसको हम निगलेक्ट कर दिया, इस Yes. को हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो वी कैन निगलेक्ट इट। सो V2 इक्वल टू X2 इंटू VG2 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए X2 आपको दिया गया है, X2 कितना दिया है आपका, डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया है, X2 इक्वल टू 1.6 0.6 0.6 हाँ, X2 इक्वल टू आपको 0.6 दिया, ओके। और आपका जो VG2 है, जो आपने 10 बार प्रेशर पे निकाला, वो VG2 की वैल्यू है 0.1943, 1940 so you can find V2 equals to X2 means 0.6 multiply by 0.1943, सो कैलकुलेट कीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपको V2 मिल जाएगा, V2 का आपको वैल्यू यहाँ पर ये निकल आएगा, Sir, 0.1165. जीरो हाँ सर, पॉइंट वन वन 65 658. 658, ये आपका क्यूबिक मीटर पर केजी हो गया, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. अब इस अब इसमें हम आपको निकालना है, वर्तन निकालना है, मीन्स आपको यहाँ पर V2 नोन हो गया सर नाउ, या सर वहाँ पे V2 1 माइनस X2 इंटू VF2
हाँ उसको निगलेक्ट कर दिया उसमें। 0.6 VF2 की वैल्यू आप ले सकते हैं, बस निगलेक्ट किया तो कोई स्मॉल वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है। आपने वहाँ देखा होगा टेबल में 0.001 कुछ अच्छा वैल्यू आ रही है, 0.00 तो वी कैन निगलेक्ट स्मॉल, यस निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको देखिए यहाँ से आपको V2 मिल गया, यस यू हैव गॉट द ईयर वैल्यू ऑफ द V2। और V1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, V1 हमारा ये लिखा हुआ है, V1 और इक्वल टू V सुपर 1 इक्वल टू 0.2328। नाउ यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड द वर्क डन। आप इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा ये, W12 इक्वल टू P1 V2 माइनस V1। तो P1 आपको दिया हुआ है, P1 कितना दिया, 10 बार, 10 बार ओके। तो इसलिए आप लिखेंगे W122 इक्वल टू, अब P1 था पहले, तो P1 जो आप लेते हैं यूनिट लेंगे, इसका यूनिट लेंगे आप किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर में, 10 इंटू 10⁻² आपको लेना पड़ेगा ये, बिकॉज वो बार में दिया है। यूनिट आपकी होती है किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर में, तो बार में लेंगे। और V2 का वैल्यू लिखा आपने इसे, मान लो 0.11658, 5 और माइनस V1 की वैल्यू है दैट इज 0.2328, ओके, 0.2328। इसको सॉल्व कीजिए सर तो आपको मिलेगा वर्क डन जो है। -1.1622 22 इसका मल्टीप्लाई किया 10⁻² का, यस सर -1 कितना आ रहा है, माइनस वन, -116.22 माइनस 116.22। 22 ये आपका आएगा किलो जूल्स में आ जाएगा, है ना, किलो जूल। किलो यस जूल सर पर केजी, ठीक है। अब देखिए आपको यस मास भी दिया है, कितना स्टीम दिया है आपको, 3 kg, 3 kg है ना। सो हियर M इज गिवन, मल्टीप्लाइड बाय 3 या हाँ मल्टी 3 कर देंगे, M इक्वल टू 3 kg दिया हुआ आपको, 348.6। हैंस टोटल वर्क डन आप निकालेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 3 इंटू, माइनस में है आपका, माइनस 348 या माइनस 116.22, कितना आ रहा है ये, -348.66। माइनस थ्री फोर यस एट सर पॉइंट 8.66। 66 सिक्स सिक्स यस सर किलो जूल्स। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका यस W12 निकल गया। सर, एक बार सर वो वीपी वीजी सर एक बार मतलब वहां से बता दीजिए एक बार, और मतलब नहीं देखिए आपको एक्चुअली क्या, स्टीम टेबल से देख। हाँ देखिए एक्चुअली क्या होगा, स्टूडियो में आपको जो प्रेशर की करस्पॉन्ड निकालना पड़ेगा, प्रेशर आपको 10 बार दिया है और टेम्परेचर दिया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर आपको जो वैल्यू रीड करेंगे वो वैल्यू आपकी होगी, स्पेसिफिक वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू होगी, ओके। सर पर यस जैसे हाँ सर हाँ, एक चीज में ये कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे अगर अपन प्रेशर प्रेशर के ऊपर लेते हैं 10 बार से, तो 179 आ रहा है ना नहीं टेम्परेचर। नहीं देखिए 1 सेंटेंस मालूम कहाँ हो, देखिए आप यहाँ पे कर्व में देखिए, ये जो लाइन जो आपकी कट कर रही है कर्व के लिए, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है ये, जहाँ इंटरसेक्ट दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, यस सर यस। इंटरसेक्ट हो रहा है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 179.9 है, क्योंकि सर टेम्परेचर। यहाँ पर हमारी स्टीम कैसी रहेगी, ड्राई स्टीम रहेगी। यदि यदि इसका मतलब प्रेशर 10 बार है और टेम्परेचर 179.9 है, तो हमारी स्टीम कैसी है, ड्राई स्टीम है। अगर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। अगर टेम्परेचर के ऊपर दिख रहा है, ऊपर की टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है सुपर आपको, 250, तो कैसे होगी, सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड प्रॉपर्टीज में हमें देखना है, आपका और क्लियर होगा कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी आपको रीड करना है, बिकॉज यू आर हियर एट दिस पॉइंट 1, आप पॉइंट 1 पर है, तो आपको प्रॉपर्टी वही लेना पड़ेगी, ओके। क्लियर। हाँ, यस। नेक्स्ट आपको निकालना है चेंज इन एंथैल्पी। तो देखिए अगर चेंज इन एंथैल्पी के लिए, चेंज इन एंथैल्पी आप कैसे निकालेंगे, वर्क आपका निकल गया। सो द चेंज इन एंथैल्पी कैन बी रिटन एज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, या सेकंड आपका है चेंज इन एंथैल्पी, यस सर चेंज इन एंथैल्पी। एक्चुअली ये आपका इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। H2 यस सर आपने जो 1 पॉइंट पर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा है, V1 लिखा है, ऐसे ही आपको एंथैल्पी रीड करना है स्टीम टेबल से, ओके। ये लिखा हुआ मैंने आपको एस सुपर 1 लिखा है, एस सुपर 1, एस सुपर यस 1 का वैल्यू मैं आपको यस सर डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है।
जैसे नॉइज ज़्यादा आ रहा है आपके हेड से, ठीक है ना। देखिए ये वैल्यू आपका लिखेंगे एच सुपर वन का वैल्यू आएगा एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए दिस वैल्यू ऑलरेडी टेकन, इसकी वैल्यू आ रही है 2944 एट दिस टेम्परेचर, 2944। ये उसी पॉइंट पर, बट वैल्यू किसकी है, एंथैल्पी की वैल्यू है। सो जस्ट विल रीड दिस Yes, वैल्यू, sir. टेक द वैल्यू हियर। सो यहाँ पर हम H1 लिखेंगे, H1 इक्वल टू दैट इज ऑल्सो H सुपर वन, बिकॉज वहाँ पर हमारी स्टीम सुपर हीट स्टीम है, 2944। 4 और ये रहेगा आपका किलो जूल्स पर केजी, ठीक है ना। आप H2 जब लेंगे तो H2 मतलब 2.1 और वेट स्टीम है। H2 के लिए फॉर्मूला आपको याद Yes, होगा, sir. H2 इक्वल टू होता है HF2 प्लस X2 इंटू X into H. X. HFG2। Yes, sir. ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर करेस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट जो हमारा 2 है, उस पर हम क्या क्या करेंगे, उसी 10 बार प्रेशर पर हम HF2 का वैल्यू और HG2 का HFG2 का वैल्यू हम रीड करेंगे स्टीम टेबल से, किसी पर पेन प्रेशर 10 Yes. बार पर, है ना। Yes, sir. हाँ, तो जो वैल्यू आएगी उन वैल्यू के लेके हम H2 कैलकुलेट करेंगे। तो H1 हमारे पास ऑलरेडी है, वी आर ऑलरेडी हैविंग द H1, और इन दोनों का वैल्यू रीड करके हम H2 फाइंड करेंगे, फिर डिफरेंस निकालें तो हमारे क्या मिल जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी। देखिए इसका वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं, उसी 10 बार प्रेशर पर। अब देखिए ये 10 बार प्रेशर आपका आ गया है, ये 10 बार प्रेशर है, इस 10 बार प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग आपको लेना है HF2 एंड HFG2। तो देखिए आप ऊपर जाइए, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये HF है और ये HFG है, आपको ये दोनों लेना है, HF एंड HFG करेस्पॉन्ड 10 बार। HF की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 762.6, कैन यू रीड इट, यस सर 762.6 ये HF की वैल्यू है, करेस्पॉन्ड टू प्रेशर 10 बार, ये 10 बार दिया है यहाँ पर। और जो HFG की वैल्यू है वो 2013.6 है, ठीक है ना। 762.6 एंड 2013.6, इन वैल्यू को हम लेके यहाँ पे यूज करेंगे। सो सी हियर, the numerical problem is a time taking problem, it requires a lot of concentration also। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एट 10 बार फ्रॉम स्टीम टेबल। और देखिए आपको इसमें HF2 कितना आया था, आपने देखा था अभी, HF2 सर 7 Seven. 762 762.6, 6 जो भी था ठीक है उसको लिख लेते हैं, है ना। सॉरी किलो जूल्स पर केजी रहेगा आपका ये, है ना। और HFG2 कितना था, 2013.6 2013.6. X2 सर 2013, 0.6 रहेगा ना 1 हाँ वो ही रहेगा, ठीक है। ये किलो जूल्स पर केजी, मतलब आप प्रोसेस समझ लीजिए, बाकी आप सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सब कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप मिल गया आपको, यस सर इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर H2। H2 इक्वल टू HF2, दिस इज 762.6, तो 6 X2 हमारा 0.6 है, ये डायनेमिक फ्रैक्शन, यस सर इंटू यस HFG2 आपका ये 2013.6। यस सर जस्ट टू कैलकुलेट इट, तो आपको इसमें H2 की वैल्यू मिल जाएगी। 1969 हाँ, So 1970.76. 70.76. 1970.76। 76. सर मेरा Yes, sir. इतना ही आ रहा है सर. कैलकुलेट कर लीजिए इसमें, जैसे 20 का, हाँ उसके आसपास ही आएगा। हाँ सर इतना ही आ रहा है। दिस इज किलो जूल्स पर केजी, है ना। संदीप ने बोलते हो तो सही है ना। H2 इक्वल टू दिस वन, सर वही था सर आपका ये H2 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, इसमें आपको निकालेंगे एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, है ना, मीन्स आप डेल H निकालेंगे, आपका एंथैल्पी Yes, चेंज sir. है H2 minus H1. H1 माइनस H2, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। यस H1 आपका था 2944 माइनस 1970.6, -9 तो Sir 973 to 973 973.84 973
32.24. 0.24. 2.24. नहीं 973 पॉइंट आएगा ना, 0.24. Yes, sir. टू यस फोर सर 24. ओके। पॉइंट तो ये Yes, sir. आपका, 973.24. हाँ वही लिखा ना, 973.24। सर माइनस का आएगा नेगेटिव। अच्छा ठीक है, वो कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है No, आप, sir. ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा आएगा, ना सर? H1 H2 पॉजिटिव आएगा, है ना। पॉजिटिव आएगा क्योंकि H1 बड़ा है सर। यस सर। हाँ, सो किलो जूल्स पर केजी। फिर आप निकालेंगे टोटल एंथैल्पी, तो 3 केजी स्टीम दिया हुआ है, सो टोटल चेंज इन एंथैल्पी, टोटल चेंज इन एंथैल्पी, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2919.72. या 3 इंटू 973.24, कितना आ रहा है ये, 2919.72. 2919.72, 72 या किलो जूल्स, इसमें से केजी हट जाएगा, ठीक है ना। किलो जूल केजी हो जाएगा। यस सर। इतने आप यू, एक्चुअली दिस इज द S1 माइनस S2 यू कैन से, ओके। दोनों डिफरेंस आपने ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकल गया और आपका एंथैल्पी चेंज निकल गया, है ना, ठीक है ना। बस दोनों ही निकालना है, इतना ही आपका यस यस सर। ये आपका हीट ट्रांसफर कहलाएगा। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, वी आर टेकिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बेस पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी एंड शेयर विद यू चैट बॉक्स ऑल्सो। ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, प्रॉब्लम आ गया ना। So a household pressure cooker contains 2 kg of dry and saturated steam at 4 bar while in operation. Calculate the quantity of heat that must be rejected so that the steam becomes wet with 0.7 dryness fraction. Also calculate the pressure and temperature of the steam that must exist in the cooker after the heat rejection. Clear question आपको? यस सर सर। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर एक चीज और रह गई थी सर फाइंड आउट करने के लिए। क्या वो हीट ट्रांसफर हो, वो दोनों इक्वल ही है, एंथैल्पी है, दोनों इक्वल है, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। ओके सर। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम कौन सा है आपका, एक्चुअली इसमें क्या है, ये प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर हमारा कैसा क्लोज कंटेनर होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए नॉन फ्लो प्रोसेस। पहला हमारा प्रोसेस कैसा हो गया, ये नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो मीन्स क्लोज सिस्टम के लिए हो गया ये आपको पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड क्या है कि जिस हमारा प्रेशर कुकर है ये बंद है, क्लोज्ड है, बिकॉज ऑफ इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपको पहचानना है कि इसमें हमारा प्रेशर कुकर है जो बंद है, पूरा क्लोज्ड है, इसलिए प्रोसेस कैसा हो गया हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसमें दिया हुआ है कि इसमें कितना है, 2 kg ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है, स्टीम कैसा है, ड्राई एंड सैचुरेटेड, और कितना है 2 kg, मीन्स में एम आपको दिया गया है, एम इज इक्वल टू 2 kg। प्रेशर जो गिवन है इनिशियली इट इज 4 बार, और जब हम इसमें जो हीट इससे रिजेक्ट करते हैं आफ्टर हीट रिजेक्शन, इसमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलेगा मीन्स एट द फाइनल कंडीशन, 0.7. या सो P1 इक्वल टू 4 बार और यू कैन टू X2 इक्वल टू 0.7। इनिशियल कंडीशन स्टीम कैसी है, ड्राई एंड सैचुरेटेड। फिर हम HS डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जस्ट रफली ड्रॉ कर रहा हूँ HS डायग्राम। तो देखिए इसमें ये मैंने ये कर्व ड्रॉ किया, वेपर लाइन, बिकॉज इसमें प्रेशर दिया 4 बार, तो सपोज आप मान सकते हैं कि ये 4 बार मीन्स ये लाइन इस प्रकार से लाइन जा रही है, ओके, इसे कौन सी प्रेशर लाइन है, यू कैन से दिस इज P1 इक्वल टू 4 बार एंड दिस यू नो इट इज नोन एज द ड्राई वेपर लाइन, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन।
और आप कर्व बोल सकते हैं, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, नाउ देखिए ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर हमें स्टीम मिलेगी, वो स्टीम कैसी होगी, ड्राई स्टीम होगी, तो इट इज .1। ओके, ड्राई स्टीम किस प्रेशर पर, 4 बार पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसमें एक्चुअली हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, यहाँ पर आप इसमें .1, तो .1 पे हमारा वॉल्यूम होगा V1 हो जाएगा, एंड V1 एंड प्रेशर हो जाएगा वो P, प्रेशर इज P1, V1 कॉमा P1 आपको ही मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो एक्चुअली इस .1 से लेकर जो फॉलो करेगा ये कांस्टेंट, इस प्रकार से एक लाइन आती है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार की लाइन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर कहीं पर हमें .2 मिलेगा, और जो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन रहेगी ये, एंड दिस विल बी .2, और .2 पर जो x2 है, x2 इक्वल टू 0.7 हियर, तो जो कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन रहेगी जो इस प्रकार से जाएगी, दैट विल पास थ्रू दिस .2, ये 2 पॉइंट से पास होगी, यहाँ पर x2 इक्वल टू 0.7 रहेगा, एंड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको करेस्पॉन्ड टू 4 बार, बिकॉज हमारी स्टीम इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर कुकर में स्टीम है वो ड्राई स्टीम है, इसलिए हम .1 मीन्स 4 बार के करेस्पॉन्डिंग ऑल द प्रॉपर्टीज वी विल रीड फ्रॉम द स्टीम टेबल। सो फ्रॉम स्टीम टेबल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो, फ्रॉम स्टीम टेबल एट 4 बार, आपको यहाँ पर ओनली प्रेशर से काम चलेगा अभी 4 बार, इस 4 बार के करेस्पॉन्डिंग आपको सारी वैल्यू रीड करना है, कहाँ से, स्टीम टेबल से। इसका मतलब सारी वैल्यू का मतलब है आपको रीड करना है V1, इसकी वैल्यू क्या है, सिमिलरली आपको H1, एंट्रोपी अगर निकालना है तो ये टू S1, फिर आप क्या करेंगे Vg इसी पर, देन Vg, देन आपको हो जाएगा Sg, एंट्रोपी Hg, एंथैल्पी, ऑल्सो आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप ऑल्सो नोट डाउन Tg और Tg1, सब Tg1 हो जाएंगे सारे पॉइंट में, ये 1 हो जाएंगे, मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज वी विल टेक फ्रॉम द स्टीम टेबल। कैसे लेंगे, तो देखिए हम जाते हैं अभी इसमें 4 बार प्रेशर वैल्यू, एंड वी विल स्टडी फॉर द ड्राई स्टीम, हमारा ड्राई स्टीम है तो स्टडी को हम आराम से ले सकते हैं। सो कम हियर, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 बार प्रेशर, ये रेड लाइन से आपको दिख रहा है ये 4 बार प्रेशर है, यहाँ पर मिला आपको ये दिख रहा है 4 बार प्रेशर, यस सर। यस सर। 4 बार के करेस्पॉन्डिंग यदि आप देखिए ऊपर चार्ट में देखें तो जो कॉलम में पहले आपका ये टेम्परेचर दिया है, इसका टेम्परेचर है T कितना दिया है, फिर आपको VF, VG, HF, HFG, HG, और आपको आगे एंट्रोपी भी दी गई है, आगे आपको एंट्रोपी दी हुआ है, है ना, SF, SFG, और Yes, sir. आपको सारी वैल्यू दी है, आपको मैंने टेबल ऑलरेडी शेयर किया है, तो आपको ये सारी वैल्यू यहाँ से रीड करना है करेस्पॉन्ड टू 4 बार प्रेशर। कोई डाउट? Yes, sir. तो आप ये वैल्यू आपको रीड करना है, अब मैं इसमें से 1 to 1 वैल्यू रीड कर नहीं लिखूंगा, ये आपको यहाँ से रीड करके आपको लिखना है, इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं, है ना। तो आप वैल्यू आपके पास मोबाइल में है कहीं पर है, उसको आप प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए, तब तो आप वैल्यू लिख पाएंगे, है ना। Yes, sir. समझ पा रहे हैं आप बात को? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. इसमें आप सारी वैल्यू आप रीड कर लीजिए, है ना। जब आप ये सारी वैल्यूज को आप इसमें रीड कर लेंगे, तो रीड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कितना हीट रिजेक्ट होगा, द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी रिजेक्टेड, तो इसके लिए मैं वापस फिर से वही प्रॉब्लम में पहुंच रहा हूँ अभी हियर। अब इसमें आपको निकालना है कि हमें कितना हीट रिजेक्ट करना होगा, सो दैट जो हमारी स्टीम है वो स्टीम विल बिकम द बेड विद द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.7, है ना। तो इसके लिए अगर हम हीट रिजेक्शन निकालें एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो वी कैन राइट
the for constant volume process, for constant volume process, देखिए इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में you will write whatever the amount of heat transfer. Heat rejected means heat transfer. The heat transferred कितना होता है बताइए, क्या फॉर्मूला है? So H1 minus H2. Heat transferred is given as or is written as, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, तो इसको हम 1 to 2 प्रोसेस में लिखेंगे Q122. सो दैट Q122 कैन बी रिटन एज U2 minus U1, U2 minus U1. देखिए अगर आपको याद होगा, इस हमारा नॉन फ्लो प्रोसेस है. नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज सिस्टम है हमारा. कौन सिस्टम है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम नहीं है ये. जब भी हमारा कंटेनर क्लोज रहेगा तो उसको बोलते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस. और आपको अगर फर्स्ट लॉ से याद है तो वी कैन राइट डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. ये पढ़ा हुआ है आपने, Yes, sir. डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. ओके, और इसमें आप लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू एंड डेल डब्ल्यू. दिस इज द वर्क डन, कैन बी रिटन एज पी डी बी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए पीडीवी क्या होता है आपका, ये वर्क डन कहलाता है. बिकॉज आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसमें क्या रहे, इन दिस प्रोसेस डीवी इक्वल टू जीरो. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डीवी इक्वल टू जीरो हो जाएगा. कांस्टेंट वॉल्यूम में डीवी जीरो होगा ना, चेंज इन वॉल्यूम. Yes, sir. Yes, sir. Internal या ऊपर हो जाएगा. हाँ, डीवी जीरो Yes, होगा. sir. सो व्हाट डू यू कैन डू हियर, जब डीवी आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, डेल क्यू इक्वल टू दैट डेल क्यू इक्वल टू डी यू. Then yes, sir. Yeah, or you can see the total amount of heat transfer equal to U2 minus U1. Okay, U1. Yes, sir. ये आएगा ना. That you have Yes, to, so I'm going to write here Q122 equal to U2 minus U1. Where U2 and U1 जो हमारे हैं वो क्या है, चेंज इन where are the internal energies at point 2 and at point 1, दोनों का डिफरेंस है ये. क्लियर? Oh, yes, sir. सो आप जानते हैं, देखिए आपको याद होना चाहिए, हम लिखते हैं एंथैल्पी को H इक्वल टू लिखते हैं U प्लस पी वी. ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने. Yes, sir. PV. Hence to we can write U equal to H minus PV. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it means अगर इसको हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमारा U2 क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू H2 माइनस P2 V2. H1. नहीं, H2 माइनस P2 इंटू V2 नहीं होगा. Yes, sir. Yes, sir. U equal to H minus PV, so U2 equal to H2 minus P2 V2. And similarly U1 equal to H1 minus P1 V1. कोई डाउट? No, sir. So we can write hence Q122, that is the heat transfer, which is equal to U2 minus U1. अब U2 हमारा क्या है, H2 minus P2 V2. So it is H2 minus P2 V2. P2 V2. Okay, and minus H1 minus P1 V1. P1 V1. इसका मतलब यदि हमें ये निकालना है हीट ट्रांसफर, तो हमें H2 और H1 नोन होना चाहिए, प्रेशर P2 और P1 नोन होना चाहिए, और वॉल्यूम V2 एंड V1 नोन होना चाहिए. ये क्लियर? Yes, sir. हमारे पास क्या नोन होना चाहिए, एंथैल्पी हमारे पास नोन हो दोनों पॉइंट पर, 1 और 2 पर. Pressure भी प्रेशर भी नोन हो और एंथैल्पी स्पेसिफिक वॉल्यूम नोन होना चाहिए. ये क्लियर? अब देखिए, Yes, sir. हाँ अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट 1 है, 1 पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, 1 पॉइंट पर हमें एंथैल्पी मिल जाएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा. देखिए आपको याद Yes, कीजिए, ये पॉइंट 4 बार है, 4 बार प्रेशर पर. क्योंकि 1 पॉइंट हमारा कहाँ है, 1 पॉइंट हमारी स्टीम कैसी, ड्राई स्टीम है.
ड्राई स्टीम है ना, तो ड्राई स्टीम है तो इस पर हमारे लिए जो एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, करेस्पॉन्ड टू 4 बार एंथैल्पी हो जाएगी Hg1, इस पे से वॉल्यूम हो जाएगा Bg1। तो ये हमारा H1 हो गया, B1 हो गया ना पॉइंट 1 पर 4 बार करेस्पॉन्डिंग। स्टीम टेबल से करेस्पॉन्ड टू 4 बार जो हमें Bg की वैल्यू मिलेगी वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा V1, और जो Hg की वैल्यू मिलेगी हमारा H1 हो जाएगा, और प्रेशर P1 ऑलरेडी दिया हुआ है। इतना समझ में यस आ रहा सर। है कि नहीं? प्रेशर को P1 दिया है ना 4 बार, यस सर। ठीक है ना, और प्रेशर P1 4 बार है करेस्पॉन्डिंग जो Hg का वैल्यू हम देखेंगे वो हो जाएगा H1, दिस विल बिकम H1, ओके। और जो स्पेस वॉल्यूम वैल्यू देखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा Bg1 इक्वल टू V1, H2। V1, yes sir. है ना। तो मतलब हमारे लिए क्या नोन है, मीन्स हमारे पास H1 नोन है हमारे लिए, और P1 नोन है, और V1 नोन P1 है, नोन है, G1। ठीक है ना। ये आपके पास जो स्टीम टेबल है वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई थिंक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट, कोई डाउट है आपको इसमें? सर मेरे को सर जैसे सर क्या बोलते हैं अपना प्रेशर सर वॉल्यूम जब कांस्टेंट है सर उसको जीरो क्यों नहीं कर देते सर यहाँ पे? बेटा वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम का इधर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, उसको जीरो कैसे करेंगे आप? अभी आप जीरो जीरो थोड़ी कर सकते हैं, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, उनका डिफरेंस जीरो होगा, V2 माइनस V1 जीरो होगा, V1 जीरो नहीं होगा ना, डिफरेंस जीरो होता है ना, DV जीरो है, V1 जीरो नहीं है। ये क्लियर क्लियर है कि नहीं आपको? तो सर इसमें क्या बोलते हैं? बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम में DV इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, देखिए फिर से बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए नहीं अगर मैंने लिखा है यहाँ पर DV इक्वल टू जीरो, DV का मतलब होता है इट इज चेंज इन वॉल्यूम, इट इज V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 होगा, जीरो कहाँ होगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? yes, sir. नहीं, DV इक्वल टू जीरो होगा ना, PdV होता है ना, वर्क डन कितना होता है, PdV होता है, तो DV जीरो है, DV इज द चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, आइदर V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2, तो V1 इक्वल टू V2 होगा, वो जीरो नहीं होगा। क्लियर और नॉट? yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है ना। Yes, तो अब sir, देखिए clear है। एक हम V1 हो गया ना, तो V1 निकल गया हमें, तो V1 हमारे पास नोन है, हमने V1 निकाल लिया। अब हमें क्या है, पॉइंट 2 पर हमें सारी वैल्यू निकालना है। अब हम जानते हैं बिकॉज हमारा प्रोसेस क्या है, सिंस प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंस इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हम कॉन्सेप्ट वही लेकर चलेंगे लेकिन सिस्टमेटिकली। इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मीन्स इस प्रोसेस में वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसका मतलब क्या होगा, जो V1 इक्वल टू V2 होगा ना। जो Yes sir. वॉल्यूम हमारे पॉइंट 1 पर वॉल्यूम मिलेगा वही पॉइंट वॉल्यूम हमारे पॉइंट 2 पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना दोनों पर। डू यू एग्री? Yes sir। ओके। अब देखिए V1 की वैल्यू हमें नोन है, हम इसमें से देख लेंगे, अभी कोई बात नहीं, V1 की वैल्यू नोन है। हमें जब V2 निकालना है दोनों सेम रहेंगे। अब देखिए V1 की वैल्यू क्या Yes sir. है, कैन यू रीड इट? देखिए V1 की वैल्यू मैं आपको देख के यही बता रहा हूँ, अभी आप से नहीं देखा होगा, देखिए अभी मिल जाएगा। देखिए इसमें आप देखिए 4 के करस्पॉन्डिंग V1 की वैल्यू दिख रही है आपको, एंड इट इज 0.462, देख पा रहे हैं आप क्या? yes sir. ये है ना वैल्यू, देखिए Point ऊपर two. दिख रही है Yes ना, sir. 0.462 ये ना। तो इसको मैं Yes लिखता sir. हूँ, इसमें So लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ, सो V1 दैट इज इक्वल is टू equal to V2 V2 is equal to 0.46 इक्वल टू kg. 0.462, 462। और ये क्यूबिक मीटर पर केजी, ठीक है ना, Meter. Yes sir. Yes sir। तो सर P1 है ना। P2 भी V1 निकालना इक्वल है टू इसका V2 P। इक्वल टू 0.462 क्यूबिक मीटर पर केजी, ये आपके लिए ये वैल्यू नोन है ना, Yes sir. ठीक है ना। अब आपको क्या है, जो आपका वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट दिया है, लेकिन आपका जो पॉइंट 2 है, एट पॉइंट टू, तो पॉइंट 2 पर क्या रहेगा, पॉइंट 2 पर आपका जो वॉल्यूम आएगा V2 आएगा,
that can be written as 1 minus x2 bf2, बिकॉज वहां पर हमारे पास क्या वेट स्टीम है कि नहीं, पॉइंट 2 पर, प्लस x2 bg2, एक्चुअल में ये होना चाहिए ना। ये आपको क्लियर है कि नहीं? यस सर, हाँ, यस सर। ये फॉलो होता है ना वेट स्टीम। अब इसको मान लो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्टिंग, बिकॉज वाटर का वॉल्यूम बहुत कम है, इसको निगलेक्ट हम कर सकते हैं, है ना। इसको अगर निगलेक्ट हम करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो अब देखिए आपको जो V2 नोन है, ये V2 और V1 दोनों सेम है, V2 इक्वल टू V1, मतलब आपको V2 नोन है, यस सर, क्लियर। यस सर। आपको V2 नोन है और आपको x2 इस क्वेश्चन में दिया है ना, आपको x2 0.7, यस सर। Yes, 0.7 sir. दिया है, 0.7. तो आप Vg2 निकाल सकते हो ना इसमें। Yes, sir. सो वी विल राइट V2 कितना दिया है, 0.462, 462। एंड दिस इज इक्वल टू, ये V2 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू, ये निगलेक्ट कर दिया तो x2 आपको दिया 0.7 दिया ना, 7 इंटू Vg2। आपको Vg2 नोन नहीं है, 2 पॉइंट पर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है ये आपको मालूम नहीं है, बट आपको 0.7 मालूम है। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड Vg2, आपको यहाँ से Vg2 मिल जाएगा। So 0.66. हाँ, 0.462 66. डिवाइडेड बाई 0.7, ये आएगा ना। Yes, कितना sir. आ रहा है, Answer कितना आ रहा 0.66. है Vg2? 0.66. जीरो 0.66. 0.66। क्यूबिक मीटर पर केजी, ये आ गया ना। Oh, yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 2 पॉइंट है, यहाँ देखिए आप फिर से, इस पॉइंट पर 2 पर क्या मिल गया आपको, Vg2 मिल गया ना आपको। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0.66 क्यूबिक 66। मीटर, मीटर ये पर केजी रहेगा, है ना, पर केजी में इसको दिया हुआ, ओके। यस सर। मतलब क्या है, देखिए हमें सारी वैल्यू निकालना है, तो हमें उस पॉइंट पर कुछ मालूम, जैसे इस पे क्या है, हमें पॉइंट 1 पर हमें प्रेशर मालूम था, तो उसको हमने प्रेशर लाइन को हमें देकर आए तो कट के यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू निकाली। हमें ये भी वैल्यू मालूम है, अगर हमें प्रेशर मालूम है तो हम सारी वैल्यू रीड कर सकते हैं स्टीम टेबल से। यदि हमें मान लो टेम्परेचर मालूम है, देन वी कैन रीड ऑल द वैल्यूज, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू वी शुड नो एट दैट पॉइंट। हमें क्या हुआ, हमें इस पॉइंट 2 पर हमें क्या मिल गया, Vg मिल गया। अब हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट वी विल रीड ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द स्ट्रीम टेबल। अब मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें ये वैल्यू मिल गई है तो हम इस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग अदर वैल्यूज को हम रीड करेंगे, कहाँ से, स्ट्रीम टेबल से। सो यस सर। करेस्पॉन्डिंग टू, आपको ये सब्जेक्ट आगे भी काम आएगा टीजीडी में, प्रशिक्षण पढ़ लेंगे तो, करेस्पॉन्डिंग टू Vg2 इक्वल टू 0.66 क्यूबिक मीटर पर केजी। पर केजी। हाँ, फ्रॉम स्टीम टेबल। आप क्या करेंगे, स्टीम टेबल से आप सारी वैल्यू यहाँ पर रीड करेंगे, आप इसके इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रॉम स्टीम टेबल। तो देखिए अब मैं जाता हूँ स्टीम टेबल में, Vg2 को देखेंगे। अब भी देखिए तो आपको, हम यहाँ पर देखिए क्या देखें, हमें यहाँ पर Vg2 नोन है ओनली, तो Vg2 कहाँ है आपका, ये वाला टेबल दिख रहा है आप जो, यहाँ पर जो मेरा देखिए कर्सर है, ये Vg आपका है ना। वैल्यू कितनी आ रही है, यस। 0.66। तो आप फिर से जाइए तो यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर आगे जाएंगे, 0.66 वैल्यू कहाँ है अप्रोक्सीमेटली, देखिए 0.66 में आप देख सकते हैं, जहाँ मेरा कर्सर देख पा रहे हैं आप, ये यस सर, Yes, 0.66, यस sir. सर। तो .6684। अप्रोक्सीमेटली आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. या तो आपको जो वैल्यू दिख रही है, इसके करेस्पॉन्डिंग आपको सारी वैल्यू रीड करना है अब, 2.7. Yes, sir. 2.7. है ना। इस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Yes, sir. आपको यहाँ पर एंथैल्पी मिल जाएगी, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, और आपको प्रेशर मिल जाएगा। ऑल द Pressure वैल्यूज यू मिल कैन जाएगा टेक sir. करेस्पॉन्ड टू दिस, ले सकते हैं आप इसको। Yes, sir. तो रीड कर लीजिए, आपसे अभी पूछूंगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो आप नोट कर लीजिए। प्रेशर लिख लीजिए 2.7, अच्छा, इससे थोड़ा कम होगा, कम इसलिए होगा बिकॉज एक जीरो मिनट सर। पॉइंट या प्रेशर इज 2.7 बार,
है ना। टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ टेम्परेचर 130 है। वी एफ का वैल्यू है 0.001070। सर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना? आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बी जी का यस वैल्यू सर। नॉर्मली, अच्छा एच एफ नोट कर लीजिए, एच एफ और एच एफ जी एंड एच जी, ये तीनों वैल्यू नोट कर लीजिए। एंट्रोपी की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर अभी फिलहाल, ठीक है। एच एफ का वैल्यू है 546.2, एच एफ जी 2173.7 और एच जी है आपका 2719.9, 2719.9। 9.9। ये यस सर, सारी हो वैल्यू गया। आप नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए मैं ओके है ना, यस सर। अभी आपसे पूछेंगे तो मुझे बता देगा ना, है ना। अब ये वैल्यू आपने सारी वैल्यू नोट कर ली, मतलब आपके पास है, ओके। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। सो फर्दर ये वैल्यू नोट करने के बाद हमें क्या निकालना है इसमें, ये हमारा जो फॉर्मूले में क्या था हमारा, H2 चाहिए हमें और P2 V2, बिकॉज हमें ये वैल्यू नोन थी, एच हमारा P1 नोन था, हमें H2 चाहिए। तो हम पहले H2 निकालना पड़ेगा, तो बिकॉज हमारे यहाँ पर वेट स्टीम है तो हम लिखेंगे H2। तो H2 इक्वल टू, वेट स्टीम के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, HF2 प्लस X2 इंटू HFG2, X2 इंटू यस सर। HFG2, ओके। तो देखिए आपको की आपको नीड होगी, तो H2 के लिए HF2 की वैल्यू क्या रीड किया आपने, HF2 की वैल्यू क्या है लेना पड़ेगी इसमें, आप रीड किया होगा ना, क्या वैल्यू HF2 की बताइए। 546.2। 546.2। 546.2, ओके। प्लस X2 आपको 0.7 दिया है क्वेश्चन में, ओके। यस सर। व्हाट इज HFG2, 2173.7। यस सर 2173। 2173.7। तो इससे आपको यस सर। कैलकुलेट कर लिया, आपको H2 निकल जाएगा। व्हाट इज H2 क्या रहा वो लिख लीजिए। 206779। कितना आ रहा है H2, 7.9। नहीं नहीं टू जीरो 5, सिक्स 2067। एक सेकेंड, पॉइंट टू सेवन नाइन 2067.79, 79। 79। ये आपका किलो जूल्स पर केजी आपका H2 निकल गया, ठीक है। यस सर। H2, P2 कितना था आपने वहाँ से नोट किया होगा, P2 कितना था, प्रेशर 2.7 था आई थिंक, है ना, सर 2.7 था ना सर? है ना, हाँ तो 2.7। ये आपका प्रेशर हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें देखिए H2 नोन हो गया और प्रेशर नोन हो गया। हमें क्या है V2, तो V2 ऑलरेडी नोन है हमारे पास। V2 कितना है हमारा, V2 हमारा 0.66 है, V2। फर्स्ट वाला यस सर। प्रोसेस है ना हमारा सर प्रोसेस। 2.7 यस यस सर। सर। ओके, सो द प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपका ये वाला वॉल्यूम ऑलरेडी नोन है। अब इसमें क्या कीजिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है H2 माइनस P2 V2 माइनस H1 माइनस Q1, इसमें आप सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कीजिए, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। सर क्या, इसमें सर प्रेशर में 10:10 मतलब यस 100 से यस, मल्टीप्लाई करेंगे ना? बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका। देखिए रीजन क्या है, दोनों जगह प्रेशर, हाँ देखिए प्रेशर केल्विन आप, उसमें करना है। देखिए प्रेशर क्या दिया आपका, P1 इक्वल टू 4 बार दिया है, समझ लीजिए जी। आप यहाँ पर P1 इक्वल टू जी 4 बार दिया है। 4 बार का मतलब होता है 4 इंटू 10⁵, नहीं होता, 4 इंटू 10 यस टू सर, पावर वो फाइव होता क्या है लिखते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये यूनिट होती है ना। तो पर इसको मीटर। हम लिख सकते हैं, 4 का मतलब इसको लिखते हैं 4 इंटू 10⁵, और शॉर्ट कर रहा हूँ, इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विदाउट। नो नो सर। सर। 4 इंटू इसका मतलब हो गया 4 इंटू 10⁵, इसलिए लिया मैंने किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है आपको क्या ये, यस यस सर। सर। यही यस सर। actually इसी यूनिट का हम यूज कर रहे हैं। इसमें पी का यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर में हम ले रहे हैं। जब भी बाहर में आएगा उसमें आप सीधा 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब तभी आपका आंसर आएगा, है ना। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। So just you calculate Q122 here.
that is Q122. You can calculate इसकी वैल्यू आपकी approximately this value is 561.18 approximately value आ रही है इसकी, just you can check it. And then we will write total heat rejected. Total heat rejected, इसमें मास का मल्टीप्लाई कर लेंगे m का, which is equal to you will multiply by 2 because 2 kg आपका स्टीम I think 2 kg दिया है, so 2 kg mass this is, sir. so 2 into 561.18 तो कितना हो जाएगा ये 1122.36. 11 है ना, ये आएगा ना, यस सर Yes, sir. 1122.36 इतना आपका ये आपका 0.36. ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना हीट हम रिजेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो ड्राई स्टीम Yes, है sir. 4 बार पर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेट स्टीम विद द Wet steam. ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.7। 7 ओके, सो अभी आपका क्वेश्चन 2 अब पूरा हुआ है ये, यस ठीक सर है। अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन और हैं, डू यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन और नॉट? नो No, सर sir. Next class में कर No, sir. दीजिएगा.